all in the geography mains paper analysis section series. We are going to analyze today the general study paper 1 for mains examination. We have picked geography for the analysis. Why? You will understand in the next section. Before analysis the previous year question paper, let's have a quick look on the question breakup. From which section in general study paper 1 UPSC has asked most number of questions. So if you observe carefully the table which I have given you in the first slide, then you will observe that 810 marks, the whole general study paper 1 has been divided into 3 sections. First one is the history, second is the society, and third is the geography. Okay, here is the one topic, that is urbanization, which is little bit overlapping with the society part, little bit it's overlapping with the geography part, right? So we will study some chapters, or we will study according to that. Here we will also discuss the things in the geography section. So if you will exclude that urbanization part, then you will find the whole geography section consists 860 marks. क्लियर? 860 मार्क्स जो है जियोग्राफी में आए हैं 2013 से लेके 2022 तक. उसके बाद जो सेकेंड वेटेज है दैट गोज टू हिस्ट्री, उसमें भी 2013 से लेके 2022 तक 810 मार्क्स आए हैं. 810 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं. क्लियर? सो उसके बाद द थर्ड नंबर कम्स टू द सोसाइटी, दैट इज 790. तो जो सबसे ज़्यादा है वो दैट इज ऑफ द जियोग्राफी. दैट्स वाई वी आर पिकिंग अप हियर द जियोग्राफी सेक्शन. अगर ईयर वाइज के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो इसमें भी इफ यू विल सी द 2020, देन यू विल फाइंड द जियोग्राफी सेक्शन कंसिस्ट this one is the geography section. Please add up and you will find that it consists almost 115 marks. Here also you will find that geography section consists 15, 35, 95 marks, right? Here also 55, 75, 85 marks. So consistently they are asking about something 1100 marks of the questions every year, right? After that the second weightage is the history, in which history is divided in the culture, freedom struggle, world history, post independence. So freedom struggle definitely consists the maximum marks. For example 2022 in 2022 art and culture consists the maximum marks, whereas only 20 marks for the freedom struggle. In the same way, if you will analyze the 2021, you will find that 40 marks comes from the freedom struggle, 10 marks culture. So overall consistently if you will observe once again 2020 culture weightage were high than the freedom struggle. 2019 again, so you will see the graph is not the straight, this is like this. Some year culture is dominating, second year weightage of freedom struggle is high. So now you can observe here that one thing, nothing is permanent, nothing is constant, everything is little bit variation, but overall you can say that yes, weightage of the freedom struggle, weightage of the culture part is the higher in the history section. And when you talk about the geography, you will see that we have divided geography in basically 4 parts. Climate disaster you can conclude one single part. Second is the simple physical geography static part which you usually study. Third is the resources part. Fourth is the industrial location, right? So in or sectors, you can say the tertiary sector, secondary sector, primary sector. So in this way the higher weightage goes to the climate and disaster part, if you will count these numbers, count these marks. Then it second goes to the physical. So physical and the climate, because some topics of the physical geography with applied and current affair part mix with the climate and disaster. So you can say physical geography is very very important for the geography section. So according to that we will see how what are the patterns of the questions which are being asked. This is the marks breakup for the general study paper 1 since the syllabus of UPSC has been changed, that is from 2013 to 2022. After the marks breakup, let's have a quick look over the geography syllabus in the geography section. Since it's analysis, we are going to first about the geography chapter, geography subject. Okay, so UPSC basically divide the whole chapters, the whole syllabus of the geography in 4 sections. Now it's our discretion to just simplify this, decode and analysis, and then according to that study as per our convenience. But UPSC has thrown the 4 sections for the geography. First one is the silent feature of the world geography. Clear? It's a simple static part. Again we will break up
हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेक्शन हमें यूपीएससी ने दिया है, हम इसको ब्रेकअप करेंगे, इसको फिर फाइनली इसके सब टॉपिक में डिवाइड करके देखेंगे कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और उसके बाद इतना ही नहीं, हम साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी बाकी सेक्शन आएंगे उनमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीन्स हर ये जो 4 सेक्शन है, और अगर अर्बनाइजेशन को इंक्लूड कर दे तो 5 सेक्शन, तो 5 सेक्शन को फिर आगे हम सब डिवाइड करेंगे फिलहाल अभी, और देखेंगे कि उसमें और फिर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो हियर दिस एनालिसिस वी विल गेट सब्जेक्ट वाइज, सेकेंड सेक्शन वाइज, थर्ड टॉपिक वाइज, फोर्थ क्वेश्चन वाइज। आर यू गेटिंग माय? इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर टू द पॉइंट थिंग्स, जो कि आपको एग्जाम्स को समझने में हेल्प करेगा। एंड हियर आई एम नॉट ओनली गिविंग यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हियर आई एम गिविंग यू द ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स एंड द throughout a model answer so that you can understand ki how you can write the answer of these questions. I will also provide you some of the basic source from where you can gather these contents. Clear? So this thing we will discuss. Second is the factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industry in various part of the world including India. यही industry location that is which we have written here in the 4th section, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. Third is the distribution of key natural resources across the world including South Asia and Indian subcontinent. ये as it is जो upsc.nic.in के वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसके जो वर्ड्स है वो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके बाद इसी को हम लोगों ने सिंपल वे में सिंप्लीफाई करके मार्क्स ब्रेकअप के लिए डिजास्टर, क्लाइमेट, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन हमने रखा है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक्स, tsunamis, volcanic activities, cyclones, geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies, ice caps and in flora and fauna and effect of such changes. And last is the urbanization, which is overlapping with the society part 2. Even not only this, if you study and complete all this syllabus here in general study paper 1, it will help you in general study paper 3 somewhere directly, and directly and indirectly it will help you in the essay paper, and indirectly it will help you in any paper of the UPSC, including optional, especially when it's your geography optional. I hope it's clear to all of you. अब हम आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिलेबस है, सिंस ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ मार्क्स ब्रेकअप और सिलेबस पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चंस को पिक करके 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, हाँ, ये दिस इज़ द बेसिक, और इसको सिंप्लीफाई अगर पूरे ज्योग्राफी को किया जाए तो ये ब्रेकअप है जिसमें ज्योग्राफी को हमने फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिवाइड किया है। ये भी थोड़ा प्रीलिम्स का भी पेपर है और उसके अंदर फिर हमने फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, डेमोग्राफी और ऑल दैट किया है। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस नाउ। सेकेंड इज़ द सेकेंड थिंग इज़ हेयर वी टू अंडरस्टैंड कि अब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ है। सो इसमें जैसा मैंने आपको बताया 4 सेक्शन बताया था, एक साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यू कैन इजीली सी हियर। ये 4 सेक्शन में जो मैंने आपको बताया है, ये साइलेंट फीचर ऑफ द, इसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। इसके अंदर क्या सिलेबस है और उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे 2013 से लेकर के 2022 तक यूपीएससी ने पूछा है, वो सारे को हम एनालिसिस करेंगे, उसके मॉडल आंसर्स, उसके पैटर्न्स, उसके कॉन्सेप्ट, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो पहला है साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो थीम है 4 सेक्शन जो हमें प्रोवाइड किया है यूपीएससी ने, उसमें एक है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का थीम है। सेकंड आप देख लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्लियर? एंड थर्ड इज द की नेचुरल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज द जियोफिजिकल फेनोमेना। ये 4 कीवर्ड है, इसी के हिसाब से हमने क्वेश्चंस ब्रेकअप यहाँ पे किया है और इसी के हिसाब से हम इसको फिर फाइनली आगे डिटेल स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या सिलेबस है और उसमें फिर क्वेश्चंस पेपर क्या पूछे गए हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। आगे इसको भी हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 सेक्शन पे। फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकेंड है ओशियोनोलॉजी, राइट, ओशियोनोलॉजी, थर्ड है क्लाइमेटोलॉजी एंड फोर्थ है सॉइल। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड सॉइल जियोग्राफी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो 1 by 1 वी विल डिस्कस ऑल दिस स्टफ। अब इसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी में भी ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, रॉक एंड रॉक साइकिल, राइट, rock and rock cycle,
geomorphic process, endogenic and exogenic, landform and their evolution, geological time scale, oceanography, hydrological cycle, sea floor spreading, ocean floor and configuration, temperature and salinity of ocean. Everything is regarding the ocean. Even see here, climatology about the atmosphere, that is composition and structure, solar radiation, heat budget and temperature, atmospheric circulation and weather systems, world climate examples. Soil geography will study about the soil and soil contents, process of soil formation, soil forming factors, types of soil, examples, soil erosion and conservation. So in this way every section has been doing here. These are the questions under this. Before that let's ये सारे questions हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे. उसके बाद जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे टॉपिक था, दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसमें भी 3 तरह, इसमें बहुत सारा जो है आगे डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को. सिंपल से लो, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, लैंड रिसोर्स के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, राइट. उसके बाद अगेन जो थर्ड सेक्शन था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट कैपिटल, लैंड, ग्रांट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, पावर ट्रांसफर, पोर्ट, वाटर, कम्युनिकेशन. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील एंड एग्लोमरेशन एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. उस पे जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट. उसके बाद फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, इसमें अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, वोल्केनो. तो इस तरह से हम डिटेल डिस्कस करेंगे. सबका कोई ब्रेकअप किया हुआ है, सबके बेसिस पे जितने भी 2013 से लेकर के 2022 तक क्वेश्चन पेपर हमने इसमें कंपाइल किया है. 1 बाय 1 इस सीरीज में हम इन सबको डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब कुछ. तो अभी फिलहाल जीएस पेपर 1 में हम लोगों ने जियोग्राफी को पिक किया है. जियोग्राफी में कंसिस्टेंटली 100 मार्क्स अबाउट हर दिन पूछे जाते हैं, सॉरी हर साल पूछे जाते हैं. तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस करने का मैंने पैटर्न आपको बता दिया. सबसे पहले हम सेक्शन जो यूपीएससी ने हमें थ्रो किया है सिलेबस में, उसको हमने पिक किया, उसको सिंप्लीफाई किया. जैसा कि हमने देखा कि उस सेक्शन का फर्स्ट जो था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया. जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड सॉइल जियोग्राफी पढ़ना है. इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है. ये अगर टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है. इसी तरीके से यूपीएससी के हर जो टॉपिक मेंशन है हमारे जनरल स्टडी पेपर में, उसको पिक करना है, उसके अंदर के सिलेबस को हमें डिवाइड करना है. अभी सिलेबस कैसे डिवाइड होता है, इसके लिए आपको जो बेसिक्स बुक्स हैं, जो आपको एडवांस बुक्स जो सोर्सेज मेंशन किए जा रहे हैं टॉपर्स के द्वारा, ट्रेंड के द्वारा, वो क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते हैं उस हिसाब से ये सिलेबस बनाया गया है. अब इसको आपको फॉलो करना है. इसके अंदर फिर जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 2022 में ये सब सवाल आए हुए थे. ठीक है, 2022 में ये सारे सवाल यहाँ पे आए हैं. तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में ये 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. तो एक क्वेश्चन में एक पार्ट लगेगा. तो जो डिटेल में करेक्टरिस्टिक, जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स. हम ये भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह के नेचर्स होते हैं क्वेश्चंस के, आपसे पूछा जा सकता है, और वे क्वेश्चंस के सोर्सेज कहाँ से आते हैं. ठीक है, और फिर हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे. जो आंसर मॉडल है वी विल प्रोवाइड इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप इट्स क्लियर. मैंने आज जो है डिस्कस किया कि किस तरह से क्वेश्चन ब्रेकअप किया गया है जनरल स्टडी पेपर 1 में. सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, उसके बाद कम किसका है, सबसे कम किसका है. उसके बाद फिर जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस क्या दिया गया है यूपीएससी में, उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कैसे किया है, और फिर उस सिलेबस के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स है जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, और उसके अंदर जो 2022 से लेकर के 2013 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, जो कि हम अगले पार्ट ऑफ वीडियो से डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच.